الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں انتخابی حلقوں میں عوام کے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پولنگ اسٹیشنوں کی ابتدائی فہرست جاری کر دی۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق انتخابی حلقوں کے حساب سے ابتدائی پولنگ اسٹیشنوں کی لسٹ شائع کر دی گئی ہے۔ ابتدائی پولنگ لسٹ پر حلقے کا ووٹر اور امیدوار اعتراض یا تجویز 11 جنوری تک جمع کروا سکتا ہے۔ ترجمان کے مطابق 12 سے 17 جنوری کے دوران ڈی آر اوز اعتراضات اور تجاوزات پر فیصلے دیں گے۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ذرائع کے مطابق سیکریٹری عمر حمید نے ناسازی طبیعت کے باعث اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے تاحال سیکریٹری الیکشن کمیشن کا استعفیٰ منظور نہیں کیا۔ گجرات میں مسلم لیگ نون کے ساتھ پنجاب میں 8 صوبائی اور 5 قومی اسمبلی کے حلقوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ طے پایا ہے جن حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی وہاں اوپن سیٹ کے ساتھ الیکشن ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم کی چودھری شجاعت حسین کے ساتھ ملاقات میں فلسطین کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ نگراں وزیر اعظم نے چودھری شجاعت حسین سے کہا کہ میں نے آپ ہی سے سیاست سیکھی ہے، میں آپ ہی کی پارٹی میں تھا، میں صرف آپ سے ملنے آیا ہوں۔ احمد پور سیال میں جائیداد ہتھیانے کے لیے شوہر، ساس اور دیوروں کے ہاتھوں شدید زخمی ہونے والی خاتون اور اس کے بھائی کو عبوری ضمانت پر ملزمان کی طرف سے قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں چودھری محمد طاہر اسلم اپنی اس رپورٹ میں۔ جائیداد ہتھیانے کے لیے شوہر، ساس اور دیوروں کے ہاتھوں شدید زخمی ہونے والی خاتون اور اس کے بھائی کو عبوری ضمانت پر ملزمان کی طرف سے قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ احمد پور سیال کے علاقہ پیر عبد الرحمان کی متاثرہ خاتون مسمات عالیہ وقار نے بتایا کہ میرے نام جائیداد ہتھیانے میں ناکامی پر میرے شوہر سمر عباس نے اپنی والدہ اور بھائیوں کے ہمراہ کلہاڑیوں اور سوٹوں کے وار کر کے مجھے شدید زخمی کیا، جن کے خلاف میرے بھائی کی مدعیت میں تھانہ احمد پور سیال میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا، لیکن ملزمان عبوری ضمانت پر ہیں اور مجھے اور میرے بھائی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ میرے دیور اپنی ساس اور بیگم کے ہمراہ میرے خاوند نے مل کر مجھے کلہاڑی اور ڈنڈوں سے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ میری حالت ابھی بھی قلیل ہے، اللہ کے فضل و کرم سے میری زندگی بچ گئی ہے، مگر ملزمان عبوری ضمانت کرا کے دوبارہ مجھے اور میرے بھائی کو جان سے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری تمام اعلیٰ افسران سے اپیل ہے ہماری امداد کی جائے۔ ایف آئی آر بھی ڈی پی او صاحب کے حکم سے ہو گئی ہے، لیکن ملزمان عبوری ضمانتیں کرا کے بازار میں ویسے پھیر رہے ہیں، دن دن آتے ہیں اور ہمیں دھمکیاں دوبارہ دے رہے ہیں۔ مجھے اور میری فیملی کو جان سے خطرہ ہے، مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ پہلے بچ گئے اب ہم تمہیں مار دیں گے۔ میری دوبارہ ڈی پی او صاحب سے اور احمد پور سیال تھانے سے اپیل ہے کہ میری دوبارہ داد رسی کی جائے اور مجھے انصاف دیا جائے اور ملزمان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ یہ واقعی جی یہ غریب ہیں، مظلوم ہیں، انہوں نے مدد کرنی چاہیے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب اور ڈی پی او جنگ سے تحفظ فراہم کرنے اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا ہے۔ چودھری محمد طاہر اسلم، اسپیشل ٹی وی، احمد پور سیال۔ گجرات میں معروف سماجی اور سیاسی شخصیات امیدوار ایم پی اے حلقہ پی پی 31 کا مسلم لیگ کاف کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر کیا رائے ہے اور کیا پلان ہے، جانتے ہیں ڈاکٹر مقدس ملک عوان سے۔ جی مقدس، بتائیے گا کیا کہنا ہے جاوید بٹ کا؟ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ گجرات میں، اور گجرات کی ایک ایسی شخصیت جنہوں نے سماجت اور سیاست میں ایک خاص نام پیدا کیا۔ 20 سے 25 سالہ جو ان کا کیریئر ہے سماجت میں اور سیاست میں، وہ بہت ہی کلیدی کردار ہے، بھلے وہ انجمن بہبود مریضاں ڈسٹرکٹ گجرات کے ہیڈ کوارٹر عزیز بٹی شہید ہاسپٹل میں ہو، بھلے وہ بزنس فارم میں ہو، یا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گجرات کڈنی سینٹر کی تو اس میں ہو، کوئی بھی کام ہو بڑھ چڑھ کر پارٹیسپیٹ کرنے والی شخصیت جاوید بٹ صاحب، امیدوار پی پی 31 الیکشن میں مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کاف لیگ کے اور ان کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر ان کی کیا تاثرات ہیں اور وہ کیا کہیں گے۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، ہماری تو پوری کوشش ہے کہ گجرات میں مسلم لیگ علیحدہ الیکشن لڑے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب بھی ہوں گے، لیکن اگر ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف یا میاں محمد شہباز شریف کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے قائد ہیں اور ہم صدقے دل سے ان کی جو حکم ہے یا ان کا فیصلہ قبول کریں گے۔
सही सर, जिस तरह से अंजुमन ताजरा के आप सदर हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट भी आप माशाल्लाह से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी आप सदर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको क्या लगता है PP31 में अगर वो सीट एडजस्टमेंट करते भी हैं फिर भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो आपके साथ अटैचमेंट है, तो क्या लोगों का तासर है? देखिए जी, ये तो फिर अवाम ने फैसला करना है। हमने तो अपने कायद की फैसले की तइद करेंगे। अगर वो कहेंगे कि शाफा साहब को आप वोट दें तो मैं ज़रूर वोट दूंगा और उनके लिए दुआ भी करूंगा और कोशिश भी करूंगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि गुजरात सिटी के लिए एडजस्टमेंट पार्टी के लिए अच्छी नहीं है। सर, PP31 जो है मेन क्राइटेरिया कहा जाता है, गुजरात का मेन मरकज़ या दिल जिसको कहा जाता है, इसमें जो आपका प्लान है क्या डिलीवर करना चाहते हैं आप? देखिए जी, मैंने तो यहाँ आपको प्लान बताया कि यहाँ सबसे जो घिनौना मसला है, अगर सीवरेज का मसला हल हो जाता है तो ताजरों का मसला हल हो जाता है, जो उनके दुकानों पर पानी चला जाता है, सन्नतकारों का हल हो जाता है, जो उनके फैक्ट्री में पानी चला जाता है, और इसके अलावा ट्रांसपोर्टर के लिए जो सारे मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। जब बारिश होती है तो गुजरात की सड़कें दरिया बन जाती हैं। तो इसके बाद एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है गुजरात में, अजीज़ पट्टी के पाए के बराबर, और एक ट्रैफिक का मसला बहुत घिनौना है, वो ठीक होना चाहिए। बाकी फिर तरक्की काम तो चलते ही रहेंगे। बिल्कुल सही। जी, जावेद भट्ट साहब का जो एक प्लान है डिस्ट्रिक्ट गुजरात के लिए, नो डाउट बहुत इम्प्रेसिव है, क्योंकि पिछले 50 साल में जब भी गुजरात इक़्तिदार में रहा, सैनिटेशन का मसला जूं का तूं रहा, उस पर हल होना ऑब्वियसली यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, यहाँ ताजर कम्युनिटी के लिए और स्पेशली रेजिडेंशियल लोगों के लिए जिनके घरों में पानी चला जाता है, उनके लिए बहुत मौसर है। जी, चूनिया में लाहौरी स्वीट की दुकान में गैस सिलेंडर में अचानक आग भड़क उठी। दुकानदार ने आग लगे गैस सिलेंडर को मेन रोड पर फेंक दिया। दुकानदारों की अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने की कोशिश, जिसकी वजह से सड़क के दोनों अतराफ ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी का पुलिस अफसरान से वीडियो लिंक इजलास, टॉप 25 थानों के SHOs की ऑनलाइन शिरकत। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी का पुलिस अफसरान से वीडियो लिंक इजलास। मज़ीद जानते हैं राना सईद की इस रिपोर्ट में। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी का पुलिस अफसरान से वीडियो लिंक इजलास, जिसमें टॉप 25 थानों के SHOs की ऑनलाइन शिरकत थी। सैयद अली नासिर रिजवी की अफसरान को जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने की हदायत। स्ट्रीट क्राइम के तदारक के लिए पेट्रोलिंग के साथ साथ मौसर हिकमत अमली अपनाएं। अपने मातहतों से काम लें, जो काम करेगा वही टीम का हिस्सा रहेगा। अच्छी कारकर्दगी पर SHO गुलशन इकबाल को नकद इनाम और तारीफी सनत का ऐलान किया। SOPs के तहत थानों की ग्रेडेशन का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। इश्तिहारियों आदि मुजरिमान की जारी मुहिम सुस्त नहीं पड़नी चाहिए। थानों में सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए। चूनिया में ड्रग इंस्पेक्टर की बड़ी कार्रवाई। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की तहसील भर में कार्रवाइयां जारी। 3 मेडिकल स्टोर सील कर दिए, मुतअद्दिद को लाखों रुपए के जुर्माने आयद कर दिए। ड्रग इंस्पेक्टर लईकुल रहमान का कहना है कि मेडिकल स्टोर मालिकान नशा आवर अद्वियात और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात फरोख्त कर रहे थे। मेडिकल स्टोर में नारकोटिक्स अद्वियात के फरोख्त के लाइसेंस के बगैर फरोख्त कानूनी जुर्म है। जाली और गैर मयारी अद्वियात के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। चनियोट आसिफ रजा की हदायत पर महंगे दामों खाद फरोख्त करने वालों और ज़ख़ीरा अंदोज़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। सिलाई वज़ारत अफसरान ने फर्टिलाइज़र की सरकारी निर्खों पर सेल, परचेज और स्टॉक रिकॉर्ड चेक करने के लिए 506 दुकानों को चेक किया। चनियोट में वायलेशन करने वाले 171 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। चिन्योट में महंगे दामों खाद फरोख्त करने और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को 73 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए। वायलेशन पर 21 डीलर्स के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। वायलेशन पर 10 दुकानों को सील, जबकि 3 फर्टिलाइज़र डीलर्स के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए। गुजरावाला में थाना लद्देवाला वड़ाइच के इलाका में घरेलू नाचाकी पर शोहर साजिद ने बीवी मरियम को कत्ल करके लाश को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक मकतूला मरियम ने पहले शोहर से तलाक के बाद मुलजिम साजिद से शादी की थी, लेकिन साजिद के अहले खाना और मरियम में अक्सर औकात झगड़ा रहता था, जिस पर मरियम के वालिदैन मकतूला मरियम और साजिद को अपने पास ले आए थे। साजिद ने अपने ससुर के फर्नीचर शोरूम से मुल्हिका कमरे में रिहाइश पजीर था। मकतूला का वालिद सुबह शोरूम पर आया तो कमरे
कुएं में मरियम की जली हुई लाश पड़ी थी, जिस पर पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम ने इलेक्ट्रिक तार से गला दबाया और फिर पेट्रोल डालकर आग लगाई। ताहम वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात की जा रही है। कश्मीर मौसम सरमा के आते ही कश्मीर में बिजली, गैस और वाटर सप्लाई की लोड शेडिंग की वजह से कश्मीर के शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं कश्मीर से हमारे नुमाइंदे मलिक हैदर अली। जी मलिक हैदर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जो सर्दी की शिद्दत है इस वक्त बिल्कुल बरकरार है। मैं आपको बताता चलूँ, उसके साथ साथ जो गैस की फराहमी है वो मुअत्तल है, उसके साथ जो बिजली की लोड शेडिंग है इस वक्त तक जो है ना बहाल नहीं की गई। रात को 12 बजे के बाद जो बिजली बंद की जाती है, सुबह को 12-1 बजे तक जो है ना बिजली को बहाल करने का नाम भी नहीं लिया जाता। उसके साथ साथ गैस हो गया, मीठा पानी, वाटर सप्लाई का। कश्मीर के शहर में जो सर्दी की शिद्दत बढ़ने की वजह से कश्मीर के जो शहरी हैं सुबह का नाश्ता भी नहीं कर सकते हैं। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उसका क्या कहना है। जी, वो सर्दी का जो शिद्दत है कश्मीर में, आप देखें ये सूरज निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिन के 12 बज रहे हैं तो रात 11 बजे से बिजली गई हुई है, अभी तक नहीं लौटा है। मतलब 12 घंटे का लोड शेडिंग। तो समझ नहीं आ रहा है, एक गैस नहीं है, बिजली नहीं है, और नाश्ता कैसे पकाएं, बच्चों को क्या खिलाएं, और घर से बाहर निकल नहीं पाते हैं। अगर जा रहे हैं हाथ मुँह धोने के लिए पानी ठंडा पड़ा है, गीज़र नहीं चल रहे हैं। मतलब पूरा जो मामलाती ज़िंदगी है वो डिस्टर्ब है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम जो सहूलियात हैं वो तो हमें मुयस्सर करे। बिजली है, गैस है, वो तो कम से कम हमें टाइम पे मिले ताकि सुबह को हम नाश्ता पकाएं, दोपहर को खाना पकाएं। ये जो बुनियादी मामलात हैं ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी अशिया है ये तो हमें मुयस्सर हो। हम तो इस चीज़ से भी कासिर हैं। जैसे कि आपने शहरी की बातें सुनी हैं, शहरी का यही कहना है कि मौसम सरमा के आते ही जो कश्मीर में बुनियादी सहूलतें हैं वो हमें मुहैया नहीं किए जा रहे। गैस की जो लोड शेडिंग है, उसके साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग, उसके साथ मीठे पानी की, हमें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मुहैया की जाएं ताकि हम सुबह का नाश्ता तो पका के खा सकें। और उनका वक्त हुकूमत से यही मुतालबा है कि गैस और बिजली की जो लोड शेडिंग है सर्दी की शिद्दत की वजह से उसको बहाल किया जाए ताकि हम सुख से नाश्ता पका सकें। जी। कंदकोट और गिरदोनवा में शदीद धुंध सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। दर्जा हरारत 1 सेंटीग्रेड तक रह गया और बिजली के फार्म 48 घंटों से मुअत्तिल। शदीद सर्दी और धुंध के बायस शहरी घरों तक महदूद हो गए, कारोबारी जिंदगी भी मफलूज होकर रह गई। जुड्डू में अहले सुन्नत वल जमात और सुन्नी राब्ता कौंसिल की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में कत्ल होने वाले मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए नेशनल बैंक चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौका पर हाफिज अब्दुल मजीद कम्बू और दीगर ने मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि अहले सुन्नत वल जमात के रुकन का कत्ल किया गया लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया कि कत्ल में मुलविस अनासिर को गिरफ्तार करके सलाहों के हवाले किया जाए। बसूरत दीगर अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा। उबाड़ो थाना की हदूद गुड्डू लिंक रोड के मुकाम पर मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा बरामद कर लिया गया। वारदात के इरादे से खड़े मुलजिमान ने पुलिस को देखकर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त गुलाम मुस्तफ़ा के नाम से हुई। फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जरवार का रिहायशी कश्मीर जिला में बॉर्डर फोर्स एहलकार अमानुल्लाह बुज़दार गुज़िश्ता 1 साल से तनख्वाहें न मिलने पर एहलकार और इनके बच्चे भूख से नडाल हो गए, जबकि उनकी अहलिया बीमारी में मुब्तला हैं। अमानुल्लाह ने अपने बच्चों के साथ एहतजाज करते हुए कहा कि मैं अपनी बीवी की बीमारी के बायस 2 माह ड्यूटी से गैर हाजिर रहा, जिसकी वजह से पुलिस महकमे के अफसरान ने मुझे मुअत्तल कर दिया और गुज़िश्ता 1 साल से मेरी तनख्वाहें नहीं मिल रही। महकमे के आला अफसरान से मुतालबा करते हुए कहा कि खुदारा मुझे फिर से बहाल किया जाए ताकि मैं अपने बच्चों का सहारा बन सकूं और अपनी अहलिया का इलाज करवा सकूं। कश्मीर अंडस हाईवे नाइशकोट के करीब दर्जनों से जायद मुसल्ला डाकुओं ने गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। डाकुओं की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए, जबकि 6 मुसाफिर और ड्राइवर को अगवा कर लिया गया। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनको रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई और सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।